नमस्कार, मैं हूँ साक्षी और मैं हूँ नंदनी और आप देख रहे हैं दी दी एज। आज जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तब कई महिलाएं अपने पीरियड्स पर होंगी और उनमें से कुछ शायद अपने ऑफिस में बैठकर काम कर रही होंगी या कुछ बच्चियां अपनी स्कूल की ओर बढ़ रही होंगी। पर आप शायद ये सोच रहे होंगे कि हम ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। वेल, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में एक PIL दर्ज की गई थी और उस PIL में ये लिखा गया था कि महिलाओं को मेंस्ट्रुअल लीव्स यानी पीरियड लीव्स मिलनी चाहिए, क्योंकि महिलाओं को पीरियड्स के दौरान काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और उन्हें काफ़ी दर्द भी होता है। कल इसी PIL को लेके सुप्रीम कोर्ट ने एक चिंताजनक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा अगर हम इस PIL को एज अ लॉ ले आते हैं तो औरतों को जॉब्स मिलने में मुश्किल होगी, लोग औरतों को अलग नज़रिए से देखने लगेंगे। तो इसीलिए आज DH की टीम ऑन ग्राउंड आई है महिलाओं से बात करने के लिए कि क्या उन्हें सच में मेंस्ट्रुअल लीव्स चाहिए या नहीं। तो आइए आज हम लड़कियों से पूछते हैं कि क्या हर लड़की पीरियड्स लीव डिजर्व करती है। आपको क्या लगता है कि वुमेन के लिए मेंस्ट्रुअल लीव्स होनी चाहिए या नहीं? Sure, of course, for at least 1 to 2 there should be a menstrual leave for women's only, because we women's only know how difficult it is for us to work in those days. Still we work, we give our best, we don't get credits. So I think so there should be leaves for 1 to 2 days. बट ऐसे बहुत बार ऐसे काउंटर स्टेटमेंट्स आते हैं इसके रिगार्डिंग भी कि कुछ सेक्शन ऑफ वुमेन ही होती है जिनको पेन होता है या वो सफ़र करती है और कुछ को नहीं होता। सो व्हाई एवरीवन शुड गेट लीव्स? It doesn't define कि सारी women's को अगर पेन नहीं हो रहा है, but they are going through a crucial process. They all are going through it and there should be equality. अगर पेन नहीं भी हो रहा है, but still we are going through the process. We have different hormonal imbalances in our body. We have multiple states of like sometimes we are very angry, sometimes we want to cry, sometimes we are getting frustrated over the work. So there should be leaves, I guess. आपके साथ कभी ऐसा हुआ है व्हेन यू आर ऑन योर पीरियड्स बट यू हैड टू गो फॉर वर्क डिस्पाइट बीइंग डिस्पाइट फीलिंग अनवेल? Actually saying I'm on the first day of my periods. Despite that, I am going to my university. I have to work from 9 to 8. Apart from the academics, I have to work for a lot of things. So it is. हाय मैम, डू यू थिंक पीरियड लीव्स मिलने चाहिए? See, I would say, being a lawyer, I have two contexts in this. So, first of all, period leaves is something that is not new to nations. It has already been there in many nations, like Scandinavian countries, right? So, slowly and gradually, this concept is coming from the Scandinavian countries. So, first of all, talking on the scientific point of view and philosophical point of view. So yes, it should be something that should be considerable enough for the women, because many women actually face a lot of problem during periods, right? They have actually heavy periods. But then if we like yesterday there was this judgment by the CJI, right? So he very specifically and beautifully mentioned that it will always hamper women. Anyway, women are still not given equal opportunities in MNCs or in many fields, right? So if we I would say if we make it mandatory as a period leave, I kind of agree it will hamper the opportunities for women, right? But anyway, there are so many companies and MNCs who still allow menstrual leaves for women. But if some are not allowing it, then we still have the concept of the CL and casual leaves. So anyhow, I don't think that it should become compulsory as for the motive of per se that they should be given or they should be looked down upon. This is not something thing that the women should be looked down upon. This is something natural. This is something scientific. It is going to happen every month with every woman, right? So according to me, there can be a middle way of this, right? There can be various things that we can provide in offices to the women. There can be a comfort zone where we say there is a room in many offices and women where they can rest, where they can sit for a while, where they can relax for a while when they are in their periods. But yes, I will agree with the CGI that there will be hell lot of opportunities women will miss if we make it compulsory for all the organization to make period leaves. Because we talk about the POCSO, the Sexual Harassment Committee, 2013 judgment came, right? But still we know on the ground there are still so many offices where sexual harassment committee is not there. So ma'am, we are standing in 2026 and we are asking for period leaves. So does this relate with equality? No.
this has nothing to do with equality. See, Article 14 says right to equality, but Article 15 clause 3 also gives special protection to women and children, right? So this law will be seen as a special doing to the women. This has nothing to do with Article 14. It is directly related to Article 15 clause 3, that we will be making special laws for women, just like we have made domestic violence or dowry prohibition or any other act for the women, right? Because this is something specifically being made for women. This is not for men. This is not for children. This will be for only women, right? And we somehow know that yes, this is 2026. Now the term feminism or feminist, right? It has something to do with equality. Women are actually demanding for equal opportunities. They're not saying that, you know, you should favor us or you should specify something for us. So when we are talking about equal opportunities, I think some women will agree that when equal opportunities need to be given, so this is something, again, this is a natural phenomena that is happening with the women. Of course, it is only happening with women, so men need to be considerate about it. Hi, today we are with Dr. Sheena. मैम, मेरा आपसे पहला क्वेश्चन है कि क्या मेंस्ट्रुअल पेन बेरेबल होता है और इसे हम किसी और पेन से कंपेयर कर सकते हैं? सी द थिंग इज़ मेंस्ट्रुअल पेन हमें इसलिए होता है क्योंकि जब पीरियड्स आते हैं तो हमारी बच्चेदानी से कुछ केमिकल्स निकलते हैं जिनको हम प्रोस्टाग्लैंडिन्स बोलते हैं, वो ज़िम्मेदार होते हैं मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के लिए। तो कुछ केसेस में जो पेन होता है वो बेरेबल होता है, जिससे कि लेडी अपना नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटी कर सकती है। बट कुछ केसेस में प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज़ बहुत ज़्यादा होता है और कुछ कंडीशंस होते हैं जैसे कि एंडोमेट्रियोसिस और पीसीओडी, जिसमें बहुत वैलिड रीज़न होता है कि लेडी को बहुत ज़्यादा पेन हो। तो ये बात पेन टॉलरेंस से रिलेटेड नहीं होती। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि इट इज़ रिलेटेड टू द पेन टॉलरेंस ऑफ द लेडी। कई केसेस में वाकई जो मेंस्ट्रुअल पेन होता है वो बहुत सीवियर होता है। यू कैन इवन कंपेयर इट टू प्रॉबली जैसे किडनी स्टोन के साथ रीनल कॉलिक होता है, उससे भी कंपेयर हो सकता है। साथ में फेंटिंग, साथ में वॉमिटिंग भी हो सकती है जो डे टू डे एक्टिविटी में इंटरफियर करती है। सो इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बट येस सर्टेन केसेस में वो बहुत सीवियर होता है। मैम, अक्सर हम सुनते हैं कि दवाई ले लो, काम कर लो, पूरे दिन दवाई लेके काम हो जाएगा। इज़ इट राइट टू टेक मेडिसिन एंड प्रेशराइज योर बॉडी एट दैट टाइम? सी लाइक आई सेड, इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। कुछ केसेस में पेन किलर्स एक्चुअली आपको बहुत अच्छा रिलीफ दे देते हैं, बट अगर कोई अंडरलाइन कंडीशन होता है, जैसे इवन कई बार रसोलियाँ होती हैं, तो उस केस में पेन किलर्स भी इतना अच्छा रिलीफ नहीं प्रोवाइड करते। तो सोचना कि हम अपनी बॉडी से कॉम्प्रोमाइज़ करें, ये थिंकिंग मेरे हिसाब से तो गलत है। अगर मैनेज हो पा रहा है कि आप पेन किलर लें और अपना डे टू डे काम करें तो दैट इज़ फाइन, बट अगर उससे भी मैनेज नहीं हो पा रहा देन योर बॉडी डेफिनेटली नीड्स रेस्ट। मैम, देयर इज़ अ वेरी कॉमन कंडीशन कॉल्ड डिस्मेनोरिया, जो बहुत कम लोगों को पता है। विल यू एक्सप्लेन व्हाट इज़ दैट? सी डिस्मेनोरिया बेसिकली मीन्स कि पीरियड के दौरान पेन होता है। वो बेसिकली दो टाइप का होता है। एक होता है प्राइमरी डिस्मेनोरिया। प्राइमरी डिस्मेनोरिया में हमें कोई एनाटॉमिकल प्रॉब्लम नहीं मिलती है बॉडी में, जैसे कि कोई रसोली नहीं है, कोई गांठ नहीं है, बट उसके बावजूद भी लेडी को पेन हो रहा है, उसको प्राइमरी डिस्मेनोरिया कहते हैं। दूसरा होता है सेकेंडरी डिस्मेनोरिया, जिसमें सिस्ट के कारण से या रसोली के कारण से आपको कॉज मिल रहा है पेन का, उसको हम सेकेंडरी डिस्मेनोरिया बोलते हैं। सो एज अ वुमेन आपको क्या लगता है, पीरियड्स लीव मिलने चाहिए? एज अ वुमन आई डेफिनेटली फील दैट कुछ कंडीशंस में, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, पीरियड लीव मिलना जायज़ है। एंड ये एक ऐसी चीज़ है जो इंडिविजुअल लेडी पे डिपेंड करता है। कुछ कंडीशंस में येस डेफिनेटली रेस्ट ड्यूरिंग पीरियड्स हेल्प, सो दैट इज़ समथिंग विच आई फील गवर्नमेंट शुड गिव प्रायोरिटी। उनको इस बात पे डेफिनेटली चर्चा करनी चाहिए। एंड येस आई फील कि कुछ केसेस में डेफिनेटली पीरियड लीव मिलना चाहिए। तो हाय मैम, डू यू थिंक कि पीरियड्स लीव देने चाहिए? हाँ, बिल्कुल देने चाहिए। आई एग्री विद इट। बट कल CJI सर ने एक स्टेटमेंट दिया है कि अगर हम पीरियड्स लीव देंगे तो वो वुमेन की प्रोडक्टिविटी पे असर डालेगा। अगर ऐसे देखा जाए तो मेरे ख्याल से फिर मेडिकल लीव्स का भी कुछ ना कुछ हमको सोचना चाहिए, बिकॉज अगर कोई व्यक्ति इतनी मेडिकल लीव लेगा तो इतना ऑफिस का नुकसान होगा। तो आई डोंट थिंक इट्स मेकिंग मच सेंस टू मी, बिकॉज मेडिकल लीव इज़ मोर ऑफ एन emergency and period is nature, so I cannot be including it in medical leave. आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। व्हेन वी गेट मेडिकल लीव तो हम बहुत बार उसको सेव करके रख लेते हैं कि कभी कोई बड़ा फंक्शन होगा या हमें बहुत ज़रूरत होगी तब हम उस लीव को यूज़ करेंगे। तो आपको नहीं लगता कि पीरियड्स लीव का भी मिसयूज़ कहीं ना कहीं होगा? जब पीरियड्स होंगे तब छुट्टी नहीं करके बाद में छुट्टी होगी। हो सकता है। सी मोरालिटी
एज अ वैल्यू ऑलवेज इज़ वेरी म्यूचुअल. सो हो भी सकता है, बट अगर हम इसके बारे में बात कर रहे हैं और अगर इसके बारे में कुछ सकारात्मक कदम हम आगे बढ़ा पाए तो आई थिंक इट वुड बी ग्रेट. So, as a woman, when you ask for period leave, do you ask it for pain only, or like sanitation भी एक issue है, या आपके लिए और क्या issue है जब period leave की मांग हो रही है? I think when a woman undergoes menstruation, it's not just about how she is dealing with it physically, but it's very psychological also. Because studies have shown that there are a lot of hormonal ups and downs that go on, and it's not just physical, maybe pain or sanitation or something like that. It's more psychological. So yes. आपको क्या लगता है कि वुमेन को पीरियड लीव्स मिलनी चाहिए या नहीं? बीइंग अ वुमेन आई विल से डेफिनेटली मिलनी चाहिए. मतलब इट्स जस्ट यूजलेस ना. आप लोग कहते हैं सिक लीव है तो सही, बट सिक लीव्स महीने लाइक साल की 7 है और मुझे महीने में 5 चाहिए. तो लाइक इफ़ आई यूज़ माई सिक डेज फॉर द पीरियड डेज दैट आर लाइक नेचुरली एवरी मंथ जो हो रहा है, तो फिर तो लाइक है ही नहीं वो सिक लीव मेरे लिए, है ना. इट्स लाइक आई विल यूज़ दैम जस्ट लाइक दैट. बट ऐसे कुछ लोगों का कहना भी है अगर वुमेन को पीरियड लीव्स मिलने लग जाएगी तो वो उसका मिसयूज़ भी कर सकती हैं. दैट इज़ ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी. आई वुड से जितने लॉज वुमेन के लिए बनाए हैं, देयर विल ऑलवेज बी अ बंच ऑफ वुमेन जो उसे अगेंस्ट यूज़ करेंगी. लाइक होता भी है बाकी लॉज में, बट पीरियड लीव्स इज़ समथिंग जिसमें आप उनकी वजह से जिनको जेन्युइनली चाहिए उनको आप ना दो, तो शायद वो गलत है. मतलब मैं तो प्रमोट करूँगी पर्सनली. बट ऐसे 2 सेक्शन होते हैं वुमेन के भी. एक सेक्शन वो है जिनको बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है एंड दे स्ट्रगल ड्यूरिंग पीरियड्स, बट एक अदर सेक्शन ये भी है कि जो स्ट्रगल नहीं करती है पीरियड के टाइम पर. सो व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? इट्स जस्ट समथिंग, इट्स डिफरेंट फॉर एवरीवन. लाइक मैं हूँ, मेरे को शायद नेग्लिजिबल होता है या फिर कभी बहुत एक्सट्रीम होता है. मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं जो लिटरली बेहोश हो जाती हैं, तो उस केस में क्या करेंगे? लाइक यू कैन नॉट बी रिस्पॉन्सिबल कि यार बेहोश हो रहे हो लेकिन काम करो, नहीं तो सिक लीव लो. दैट इज़ समवॉट रूड आई वुड से. आपको क्या लगता है अभी भी हमारी सोसाइटी में पीरियड्स को लेकर क्या ओपनली बातचीत होती है? मतलब आई डू. मेरे आसपास जितने मेरे फ्रेंड्स हैं दे डू, इवन द मेल फ्रेंड्स. बट दे आर वेरी इंटरेस्टेड इन इट. क्या अच्छा नीला नहीं होता? ओके, हमें तो ऐड में नीला लगता था, नहीं होता भाई, नीला नहीं होता. तो लाइक मेरे आसपास तो चिल है. बट रिगार्डिंग द ओल्डर जनरेशन लाइक माई फादर और माई रिलेटिव्स, इट्स स्टिल लाइक अ इशू जो आप औरतों का समझ के रखते हैं वो, कि मेरे से मत बात करो. क्योंकि आप खुद भी एक फ़ीमेल एडवोकेट है, आप सुप्रीम कोर्ट के स्टेटमेंट को किस तरीके से देखती है? देखिए, मैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ. मैं चाहती हूँ कि विमेंस को मेंस्ट्रुएशन लीव मिलनी चाहिए जिससे कि उनकी प्रोडक्टिविटी एनहांस हो. अभी रिसेंटली इंटरनेशनल विमेंस कॉन्फ्रेंस में भी ये कहा गया है वियना और वेग में कि वहाँ पर विमेंस एम्पावरमेंट को बढ़ावा देना चाहिए. अगर हम इस पर बात करें विमेंस एम्पावरमेंट पर, तो सबसे पहले यही क्वेश्चन अराइज होता है कि विमेंस एम्पावरमेंट एनहांस कैसे हो. जब तक उनको फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी उस तरह की, तब तक वो एनहांस कैसे होंगी? सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है मेरा. सेकेंड, विमेन एम्पावरमेंट इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि उनकी जितनी भी पावर्स हैं वो हमें बढ़ानी है और उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करके ही उनको बढ़ाया जा सकता है. आपको क्या लगता है कि अगर विमेन को मेंस्ट्रुअल लीव मिलेगी तो आपको क्या लगता है उनकी प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव होएगी या नहीं? देखिए, प्रोडक्टिविटी बिल्कुल इम्प्रूव होगी जहाँ तक मैं सोचती हूँ. जहाँ पर विमेंस के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उनकी हेल्थ. काम से पहले हेल्थ होना बहुत इम्पॉर्टेंट है. जब तक हेल्थ नहीं होगी तो प्रोडक्टिविटी में भी एनहांसमेंट नहीं मिलेगा. सेकंड, उनकी अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि उनकी ऐसा मतलब मेंस्ट्रुएशन लीव देने से उनकी वर्क पे मतलब इफ़ेक्ट पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है. अगर आप देखें तो उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं और अनदर वर्क्स लीव पे. जैसे सैटरडे संडे आप उनको वर्क स्पेस दे सकते हैं. सो मेरा यही मानना है कि इनकी प्रोडक्टिविटी एनहांस करना है तो उनकी हेल्थ पर भी ध्यान देना होगा सबसे पहले, और विमेंस एम्पावरमेंट को भी इसमें बढ़ावा मिलेगा. जब हम मेंस्ट्रुअल पेन की बात करते हैं तो आपको क्या लगता है अगर मेंस्ट्रुअल पेन को इग्नोर किया जाता है तो आपको क्या लगता है कि वो विमेन के हेल्थ के भी अगेंस्ट वो बात जाती है? बिल्कुल जाएगी. अगर हम मेंस्ट्रुएशन पेन देखें तो उसमें
कई ऐसी विमेंस है जिनको पेन बहुत ज़्यादा रहता है और कई ऐसी विमेंस है जिनको पेन होता ही नहीं है, लेकिन इस पर हमारा कंसंट्रेशन नहीं है। इस पर हमारा कंसर्न ये है कि विमेंस एम्पावरमेंट पे अगर हम उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड जितनी ज़्यादा करें उतना ही उनके लिए, उनकी प्रोडक्टिविटी के लिए उतना ही ज़रूरी और अच्छा भी है। मैम, कल CJI सर ने पीरियड्स लीव को लेके एक चिंता जताई थी कि अगर वो इसे कानून के रूप में लागू कर देते हैं तो कोई भी वुमेन को नौकरी देने से हिचक सकता है, तो इस पर आपकी क्या राय है? मैं कुछ हद तक फेवर में हूँ इस बात के लिए कि लीव्स मैंडेटरी नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं इस चीज़ को गेस करती हूँ कि जिनको एक्चुअली क्या होता है, सबको प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है। इट डिपेंड ऑन द ह्यूमन बॉडी, स्पेशली वुमेन्स बॉडी पे डिपेंड करता है कि किसको प्रॉब्लम हो रही है, किसको नहीं हो रही है। तो मैंडेटरी तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिनको प्रॉब्लम नहीं वो आके काम कर सकते हैं। तो हाँ, ये होगा कहीं ना कहीं जो क्वालिटी ऑफ वर्क है वो इफेक्ट करेगा इस चीज़ से डेफिनेटली। लेकिन हाँ, ये कि जिनको प्रॉब्लम है उसके जैसे एडवर्स ऑर्डर भी नहीं होना चाहिए। या स्टूडेंट्स की भी बात करिए उन्होंने उस चीज़ में, तो स्टूडेंट्स को मुझे लगता है बचपन से ही अगर हम अपने, जैसे मेरी भी बेटी है, मैं उसको बोलती हूँ थोड़ा थोड़ा अगर वो उस टाइम पे काम करो तो एक रूटीन आ जाता है, बच्चों की बॉडी हैबिचुअल हो जाती है उस चीज़ के लिए, तो बाद में जाके उनको इफेक्ट नहीं होता। मुझे नहीं लगता कि शायद मैंने इस टाइम पे कभी भी कोई छुट्टी ली है या कभी अपने स्कूल बंक किया है या कुछ भी किया है उस टाइम पे। मैम, हम 2026 में बैठे हैं और उनके स्टेटमेंट से हम इक्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि अगर हम पीरियड्स लीव लागू कर देते हैं तो ये इक्वालिटी पे क्वेश्चन उठा देगा? बिल्कुल होगा। मैंने इसीलिए पहले ही बोला कि धीरे धीरे बच्चों को, आप गर्ल्स को, बेटी है आपकी, आप उसको शुरू से अगर थोड़ा थोड़ा करके आदत डालोगे उस चीज़ के लिए, तो शायद उस स्टार्टिंग में मैं मानती हूँ पेन होता है हर एक किसी के, वो भी डिपेंड करता है, बॉडी टू बॉडी होता है, लेकिन एक टाइम के बाद जाके जब आपकी बॉडी रूटीन में आ जाती है तो आपको नहीं पता चलता। आप नॉर्मल रूटीन की तरह काम कर रहे होते हो उस दिन, उस टाइम पे भी 3 दिन 4 दिन आप नॉर्मल रूटीन की तरह काम कर रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि उसके लिए मैंडेटरी होनी चाहिए लीव्स। मैम, पोर्शन तो दोनों तरफ बटे हुए हैं, दर्द हो भी रहा है, दर्द नहीं भी हो रहा है, और दर्द से ज़्यादा सैनिटेशन पे भी बात आ जाती है। कल भी पार्लियामेंट में ये बात उठी थी कि सैनिटेशन नहीं है लड़कियों के पास, इसलिए वो नहीं जा रही है। तो फिर CJI सर का ये स्टेटमेंट कैसे वैलिड हो रहा है? वैलिड ऐसे हो रहा है कि मैं ये कह रही हूँ मैंडेटरी नहीं होना चाहिए, मैंने वर्ड यूज़ किया मैंडेटरी नहीं होना चाहिए, लेकिन एडवर्स नहीं होना चाहिए। अगर कोई इस चीज़ के लिए रीज़न दे रहा है तो आपको उसको कंसीडर करना चाहिए रीज़न को, कि हाँ ठीक है उनका रीज़न है, जेन्युइन रीज़न है। प्लस एक बहुत इंपॉर्टेंट सैनिटाइजेशन की जो आपने बात की, मेरे पास एग्जाम्पल है इस चीज़ का। नॉमिनेशन का टाइम था VCD इलेक्शंस में, सिर्फ एक लेडी वॉशरूम था वहाँ पे, तो बहुत देर हमको वेट करना पड़ा, उसके लिए बहुत लंबी लाइन थी क्योंकि नॉमिनेशन था, बहुत सारे कैंडिडेट्स आ रहे थे उस टाइम पे। तो हाँ, ये मैं इस चीज़ को मैंने रेस किया है, यहाँ पे शायद आगे भी पहुँचे ये बात आगे, कि बार ऑफिस में, दिल्ली बार ऑफिस में एक मतलब फीमेल्स के लिए होना, क्योंकि एक रेशियो कम है फीमेल्स का, इसलिए शायद वो प्रॉब्लम थी वहाँ पे उस टाइम पे। रेशियो अगर ज़्यादा होगा, वहाँ पे फीमेल्स भी होंगी, तो शायद वो चीज़ के लिए इम्प्रूवमेंट हो सकता है वहाँ। अगर हम ये बात कर रहे हैं कि हमें पीरियड्स लीव नहीं देनी चाहिए, मतलब जो हम सर के मैंडेटरी नहीं होनी चाहिए, कुछ लोगों ने वॉलंटियरली भी, कुछ सिटीज़ ने, स्टेट्स ने निकाला है कि आप अगर आप देना चाहो तो आप दे सकते हो, तो इससे आप कितने सहमत? मैं बिल्कुल मैं वही कह रही हूँ स्टार्टिंग से ही कि आप मैंडेटरी नहीं होनी चाहिए, इसकी बजाय आप इसके बाद चाइल्ड केयर लीव दे सकते हो आप, क्योंकि जो जिनको गर्ल्स जो मैरिड हैं, उनके बच्चे हैं, उस टाइम पे उनको लीव की बहुत रिक्वायरमेंट होती है। छोटे बच्चे हैं, डिलीवरी हुई है, जब उस टाइम पे जजेस अगर उस चीज़ को कंसीडर करें तो बहुत अच्छा होता है। मोस्टली जब उस टाइम एडवर्स ऑर्डर होता है तो वो बहुत इफेक्ट करता है फीमेल एडवोकेट्स को। आपको लगता है कि मेंस्ट्रुअल लीव वुमेन की प्रोडक्टिविटी के लिए ख़राब है? कुछ हद तक मैंने बोला कि क्या होगा कि बहुत इस चीज़ का शायद वो भी करेंगे जिनको रिक्वायरमेंट नहीं है, जो डेली रूटीन आके अपना काम करना चाहती हैं, या किसी अब सपोज एक डेट आज पड़ रही है, एक अगर 4 महीने बाद पड़ रही है, तो हमको चाहिए हमारे क्लाइंट को आज रिलीफ मिले, हम वो चाहते हैं। अगर इस चीज़ की वजह से हमारे अपोजिट में है, मैं खुद फीमेल हूँ, लेकिन अगर मेरे अपोजिट में है और वो लीव लेके जा रही है, अगर उनका मैंडेटरी नहीं होगी तो हमें ये पता है कि मैंडेटरी नहीं है, शायद आके काम भी कर लेंगी, नहीं होगा तो उन्होंने अपना रीज़न देंगे तो हम उस चीज़ को कंसिडर कर लें। ये मेरा कहना है इस चीज़। आपको क्या लगता है कि आपको पीरियड्स के टाइम पर मेंस्ट्रुअल लीव्स मिलनी चाहिए या नहीं? यस, आई थिंक्स मिलनी चाहिए, बिकॉज़ हम अनवेल होते हैं फिज़िकली, तो आई गेस इतनी प्रोडक्टिविटी नहीं हो पाती, इतनी एफिशिएंसी नहीं हो पाती काम के टाइम पे। एंड आई थिंक इट इज़ नॉट अबाउट जेंडर थिंग कि लड़कों को नहीं मिलती हैं, लड़कियों को मिलनी चाहिए। आई गेस लड़कियों के साथ इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट येस अगर फिज़िकली अनफिट है, अनवेल है, तो आई गेस इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टेक रेस्ट इन दोज डेज। So I guess it is very important to that we should get the menstrual leaves for those days. आपको क्या लगता है अगर विमेन को मेंस्ट्रुअल लीव्स मिलेगी तो क्या उनकी प्रोडक्टिविटी में कुछ इम्प्रूवमेंट दिखेगा?
येस ऑफ कोर्स, बिकॉज अगर हम मेंस्ट्रुअल लीव के बाद अगर आते हैं ऑफिस ज्वाइन करते हैं तो एक्चुअली में एफिशिएंसी जो होगी हम और इफेक्टिवली काम कर पाएंगे, बिकॉज मेंस्ट्रुअल डेज पे हमारा थोड़ा सा बॉडी अनवेल होती है तो हमारा माइंड जो होता है वो उसी चीज़ पे डिस्ट्रैक्टेड रहता है कि हम इतना नहीं प्रोडक्टिव हो पाते हैं, बिकॉज हम अनवेल होते हैं, हम इतना नहीं अच्छा सा फील कर पाते, तो हमें बस ये लगता है कि घर जाते हैं, रेस्ट करते हैं और ब्रेक ले लेते हैं, तो आई थिंक वो बहुत हैम्पर होता है, प्रोडक्टिविटी बहुत हैम्पर होती है. सो आई गेस इट इज़ इंपॉर्टेंट टू गेट द मेंस्ट्रुअल लीव्स. बट CGI का ये कहना है कि अगर विमेन मेंस्ट्रुअल लीव्स लेने लगेगी तो उनको एक अलग ही तरीके से देखा जाएगा, दे विल बी ट्रीटेड लाइक समथिंग डिफरेंट, और उन्हें शायद फ्यूचर में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिले, यही चीज़ को देखते हुए. आपको क्या लगता है इस पे? आई थिंक आई डोंट अग्री विद दिस, बिकॉज लड़कियों को अलग तरीके से देखा जाएगा. आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली डज दैट मीन, बिकॉज women are different and women are really strong because we go through a certain period in our lives. So I guess अगर menstrual leaves मिलती हैं तो उससे कोई impact नहीं होगा. Actually अगर नहीं मिलती हैं तो उन 3-4 दिन के लिए, जितने भी दिन के लिए हमें नहीं मिल रही हैं, I guess ऑफिस में काम बहुत हैम्पर होगा, हर चीज़ें में बहुत आई थिंक कोई भी मैनेजर या फिर कोई भी टीम लीडर ये नहीं चाहेगा कि उनका काम में थोड़ा सा दिक्कत आए. तो आई गेस ऐसा कुछ नहीं है कि एक अलग तरीके से देखा जाएगा, बिकॉज आई डोंट अग्री विद दिस. आई रियली डोंट अग्री विद दिस. डू यू थिंक कि लड़कियों को पीरियड्स लीव मिलने चाहिए? हाँ बिल्कुल मिलने चाहिए पीरियड्स लीव, क्योंकि पीरियड्स के टाइम में लड़कियों को बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, जिस टाइम में वो ऑफिस जाने में अनअवेलेबल रहती, क्यों नहीं जा सकती हैं. तो इसलिए उनको पीरियड्स लीव तो मिलने चाहिए, ताकि वो जो भी पेन होते हैं उनके काफ़ी, तो वो वर्किंग टाइम में वो नहीं कर सकती वो चीज़ों को हैंडल, तो उनको पीरियड्स लीव तो ऑब्वियस सी बातें मिलनी चाहिए उनको. बट मैम कॉर्पोरेट में हमें 2.5 दिन की छुट्टी हर महीने मिलती है, तो उसमें ये क्यों नहीं इंक्लूड हो सकता? तो वो डे बनाया नहीं गया है ना कि अब किसी के पीरियड्स की डे फिक्स थोड़ी है कि कब किसकी आ रही है किसकी नहीं आ रही है. अब 2.5 दिन मिल रहा है तो उसके लिए हमने वो नहीं है ना कि वो उसको उसी दिन पीरियड्स आ रहे हैं क्या नहीं आ रहे हैं. तो एक तो उसके में एडजस्ट होना चाहिए कि पीरियड्स लीव उसको एक अलग से मिलनी चाहिए. हम जब 2026 में इक्वालिटी की बात करते हैं तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं पीरियड्स लीव के वजह से इक्वालिटी हार्म हो सकती है? हाँ ये बिल्कुल है कि इक्वालिटी हार्म हो सकती है, क्योंकि कहने की बात है कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशंस बहुत टाइम से चलता हुआ आ रहा है. तो ये है कि अगर गर्ल्स को पीरियड्स लीव मिलती है तो फिर एक ऑब्जेक्शन उठ जाएगा कि हम भी तो काम कर रहे हैं, हम भी तो, हमारी भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, हमें लीव मिलनी चाहिए. लेकिन ये पीरियड्स लीव पूरी एक अलग चीज़ है. तो यहाँ पे तो हम बात कर सकते हैं कि क्या कहते हैं, गर्ल्स की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको, मतलब जो पीरियड्स का टाइम होता है वो 4-5 दिन तक वो बहुत ज़्यादा उनके लिए पेनफुल होता है, लेकिन एटलीस्ट 1 डे के लिए उनको एक रेस्ट मिलना चाहिए कि एटलीस्ट वो 1 डे जो भी वो सफ़र से गुजरती है, जो भी पेन से गुजरती है, तो एटलीस्ट वो अपने घर पे रह के रेस्ट कर सके. ये ऑब्वियस सी बात है कि प्रोडक्टिविटी हार्म होती है. तो ऐसा है कि गर्ल्स क्या कर सकती हैं कि जो 2.5 दिन मिलता है, ठीक है, या तो उसमें अपना एडजस्ट करें, और जिस कॉर्पोरेट कंपनीज़ में नहीं मिल रही हो 2.5 दिन की लीव्स, तो मैं ये कहना चाहूँगी उसमें भी या तो ये 2.5 दिन की लीव्स उनको दी जाए या फिर उनको एक पीरियड्स लीव दी जाए. अगर हम पीरियड्स लीव का नाम दे देंगे किसी छुट्टी को तो कोई भी खड़ा होकर ये बोल सकता है कि इनको तो फेवरिज्म मिल रहा है, लड़की है छुट्टी मना सकती, हम नहीं कर सकते. ये हो सकता है. तो उसके लिए हम या तो ये कह सकते हैं कि कोई भी जैसे लाइक CL मिलता है ऑफिस में, तो एक CL का नाम दे के हम उनको वो प्रोवाइड करवा सकते हैं कि हाँ ये CL मिल रही है आपको, तो इसके थ्रू हम उनको प्रोवाइड करवा सकते हैं. तो व्हेन एवर शी वांट कि जब भी उनका पीरियड्स आता है तो वो अपना लीव उसको उस टाइम यूज़ कर सकती हैं. वेल, जैसा अभी आपने सुना होगा कि हमने महिलाओं से बात करी और उनमें से ज़्यादा महिलाओं का यही कहना था कि उन्हें पीरियड लीव्स यानी मेंस्ट्रुअल लीव्स की दरकार है. वो इसके समर्थन में है. क्यों? क्योंकि उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उन्हें काफ़ी दर्द होता है इस पूरे पीरियड्स के टाइम पर. लेकिन कुछ लड़कियों ने ये भी बताया कि पीरियड्स लीव नाम से कोई लीव नहीं दी जानी चाहिए. जब हमने लॉयर से बात की तब उन्होंने हमें ये बताया था कि हर प्रोफेशन की डिमांड अलग होती है. अब क्योंकि इसने कहा कि हर प्रोफेशन की डिमांड अलग होती है, तो आपको भी ये पता होगा कि हम पत्रकार हैं, और चाहे बारिश हो, चाहे सर्दी हो, चाहे कड़क धूप ही क्यों ना हो, और चाहे हमारे पीरियड्स ही क्यों ना हो, हमें ऑन ग्राउंड रहना ही पड़ता है. हमें ऑन ग्राउंड इसलिए रहना पड़ता है कि वो खबर आप तक उस वक्त पहुंच सके. हम तब ये नहीं सोच सकते कि हम पीरियड्स पे है या फिर बारिश हो रही है. वेल, पीरियड लीव्स होनी चाहिए या नहीं, इस पर हर लड़की का अपना अलग अलग नज़रिया है.
और हर लड़के की अपनी अपनी पीरियड्स की एक अलग अलग कहानी। जब हम पीरियड्स की कहानी की बात कर रहे हैं तब हम सिर्फ दर्द की बात नहीं करते, हम सैनिटेशन का भी मुद्दा उठाते हैं। क्या स्कूल, कॉलेजेस और ऑफिसेज में इतना पर्याप्त सैनिटेशन प्रैक्टिस हो रहा है कि औरतें उस समय में ऑफिस जा सके, स्कूल जा सके या कॉलेज जा सके? क्या पीरियड लीव्स मिलनी चाहिए या नहीं, ये सवाल का जवाब हम आप पर छोड़ते हैं। आप हमें बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या लगता है। और अगर कोई महिला इस वीडियो को देख रही है तो हम ज़रूर आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी क्या राय है इस पर। क्या आपको लगता है कि आपको पीरियड लीव्स की ज़रूरत है या नहीं? वेल, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। विद वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक, दिस इज़ नंदनी, दिस इज साक्षी फॉर दी एज।